So once again, welcome to you. This is your lecture number 10, which is about capital budgeting techniques. In this lecture, you will be able to understand the three major discounted cash flow methods of project evaluation. Internal rate of return we have discussed already. Net present value is the core. You can say is the core method which we will discuss today, and the profitability index. You will be able to describe the situations where ranking the projects may be necessary and justify when to use either IRR, net present value, or profitability index ranking. So last time मैंने आपको project की evaluation के techniques बताई थी. So there are four techniques of projects evaluation. The number one is payback period. Second one is the internal rate of return, then net present value, and then profitability index. So out of these four, we have already discussed the first two methods of project evaluation, which is payback period and internal rate of return in our last lecture. So in today's lecture, we will focus on net present value, which is NPV, and the profitability index, which is PI. So we have the same projects, project A and B. Project A consists of this cash flow. The first is the cash outflow. Initial cash flow is 40,000 और next 5 years का जो project है और 5 years में जो cash inflows हैं, पहले साल में 10,000 है, दूसरे साल में 12,000 है, फिर 15 है, फिर 10 है और फिर 7,000 है. So these are the cash inflows for the coming years. और ये प्रोजेक्ट ए है जिसमें अनइवन कैश फ्लोज को हम डिस्कस करते हैं. अनइवन कैश फ्लोज का मतलब है कि आपकी किसी भी साल, हर साल में जो कैश इनफ्लोज हैं वो डिफरेंट है, वो एक जैसी नहीं है. इवन कैश फ्लोज में जो कैश इनफ्लोज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है. तो अनइवन मींस के दीज आर नॉट इक्वल कैश फ्लोज. सो फॉर दिस टाइप ऑफ कैश फ्लो वी हैव टू discuss the techniques that we are going to discuss. The second is the project B. Second जो है वो project B है. Project B में जो initial cash flow है, outflow है वो 42,000 है और जो cash inflows हैं वो 14,000 है हर साल की, वो equal है. तो इस वजह से हम project B को कहते हैं even cash flows. तो इनकी जो timeline है वो भी 5 years की है. So दोनों तरह की जो cash flow जो projects हैं, project A and B, उसके लिए हम अप्लाई करके देखेंगे कि हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले, और उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू of an investment project's net cash flow minus the project's initial cash outflow. Net present value क्या होती है? Net present value is composed of two words. The first one is net and the second one is the present value. ठीक है. तो net present value का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की कैश फ्लोज की आप present value कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. तो पर्टिकुलरली आप जो जितनी भी कैश इनफ्लोज होती हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला CF1 over 1 plus K raised to the power 1 plus CF2 over 1 plus K. K stands for required rate of return. आप K required rate of return को K से भी डिनोट कर सकते हैं और RD से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि RD से हमने required rate of return को डिनोट किया. तो you can denote it as a K or RD. So CF1 stands for first year cash flow divided by 1 plus K raised to the power 1. तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ से ड्राइव किया है हमने. अपनी स्क्रीन पे देखें. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 plus I रेज टू द पावर n. तो यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू है वो बनेगी आपकी फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा K रेज टू द पावर 1 की आप फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. और इसी तरह सेकंड ईयर की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो CF2 यानी सेकंड ईयर की कैश इनफ्लो ओवर 1 प्लस K मींस इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन. जितने ये साल की हैं आपने उस साल तक उनकी जो प्रेजेंट वैल्यूज है कैलकुलेट करने के बाद लास्ट पे आपने क्या करना है, माइनस करना है ICO. ICO स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैश आउटफ्लो.
ठीक है, जो 0th ईयर पे कैश आउटफ्लो है ना, उसमें से आपने माइनस कर देना है। सो यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो थी वो थी 10,000 ओवर 1। अगर डिस्काउंट रेट आपका 13% हो तो फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। देन नेक्स्ट इज के यू हैव टू फाइंड द सेकेंड ईयर्स, जो सेकेंड ईयर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो सेकेंड ईयर की कैश इनफ्लो है 12,000 ओवर 1 plus I raised to the power 2, and then third year की कैश फ्लो है 15,000 over 1 plus I raised to the power 3। फोर्थ ईयर की 10,000 है और फिफ्थ ईयर की 7,000 है, और लास्ट पे जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो 40,000 है। ठीक है, सो आई अगेन रिपीट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि जी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जितने साल की कैश फ्लोज होंगी। ठीक है, लास्ट देखें कि आपकी जो प्रोजेक्ट ए है, हम प्रोजेक्ट ए की कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जो प्रोजेक्ट ए है उसमें जो कैश इनफ्लोज हैं, अब उसको गौर से देखें। जो कैश इनफ्लोज हैं वो है पहले साल की 10,000, दूसरे साल की 12,000, तीसरे साल की 15 है, चौथे साल की फोर्थ है 10,000 है, और फिफ्थ ईयर की आपकी है 7,000। तो हमने क्या करना है कि बारी बारी इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10,000 को डिवाइड करेंगे 1 plus I, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि 13% है, तो ये होगा 0.13 1 plus I रेज टू द पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको के से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप RD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो these two abbreviations are used for required rate of return. Okay, so don't confuse के where does the K come from, where does the RD come from. So particularly जब आप प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पे आए कि सेकंड की हमने क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होगा सेकंड प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे 12,000 ओवर 1 plus 0.13 रेज टू द पावर 2। रेज टू द पावर 2 क्यों? क्योंकि ये सेकंड ईयर की कैश फ्लो है। ठीक है, और इसको इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने थर्ड ईयर की कैलकुलेट करनी है, इसी तरह आपने फोर्थ ईयर की कैलकुलेट करनी है, इसी तरह आपने फिफ्थ ईयर की कैलकुलेट करनी है। लेकिन डिनोमिनेटर में रेज टू द पावर होगा, यहाँ पे थर्ड ईयर में होगा डिनोमिनेटर में रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे होगा रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर की बात करूं सिर्फ, रेज टू द पावर 5। क्योंकि आपने इसको 5 साल पीछे लेके आना है तो आपने इसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितने साल की आपकी कैश इनफ्लोज होंगी इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उन सबको ऐड कर देना है। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू के, जिसमें आप CF1 यानी कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, सबको प्लस करते हैं, और लास्ट पे आप क्या करते हैं कि जो इनिशियल कैश इनफ्लो है उसको माइनस कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट ए में हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर की जो कैश फ्लो है वो है 10,000, सेकंड ईयर की 12,000, देन 15,000 थर्ड की, देन 10,000 आपकी फोर्थ की कैश इनफ्लो है, और 7,000 फिफ्थ ईयर की। जो इनिशियल कैश इनफ्लो है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000, उसको हमने माइनस करना होता है। तो याद रखें, जब मैं लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें आई हैव टोल्ड यू, जो जितनी भी कैश आउटफ्लोज होती हैं, यानी वो कैश जो बिजनेस से आउट हो रहे हैं, उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। लेकिन जो कैश इनफ्लोज हैं, वो कैश जो बिजनेस में इन हो रहा है, उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इसका जो आंसर है, सबको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -1428, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी बनी -1428। ये इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कि फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो की आपने फाइंड की, देन सेकंड ईयर की, देन थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, देन फोर्थ ईयर की, देन फिफ्थ ईयर की, और उसको आपने माइनस कर दिया जो उसकी इनिशियल कैश फ्लो है। तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 1428। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप इस टाइमलाइन को देखें
इस टाइमलाइन की हम बात करें, इस टाइमलाइन की हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि हम आज किसी प्रोजेक्ट में 40,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और अगले 5 साल में जो हमें कैश रिसीव होंगे उस इन्वेस्टमेंट से, वो पहले साल है 10,000, दूसरे साल है 12,000, तीसरे 15 है, देन 10 है, देन 7,000 है। हमने ये देखना है कि जो एक साल के बाद आपको 10,000 रिसीव हो रहा है उसके आज के दौर में क्या वैल्यू है, 12,000 की आज के दौर में क्या वैल्यू है, और 15,000 की, इसी तरह 10,000 की, देन 7,000 की आज के दौर में वैल्यू क्या है। इसलिए हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि इसकी आज के दौर में 10,000 तो इसकी वैल्यू होगी ना एक साल के बाद। आज के दौर में अगर 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैं यूज करता हूँ, तो इन टूडेज वर्ल्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,000 जो कि हमें एक साल के बाद रिसीव होगा, ठीक है। तो वो जब हमने कैलकुलेट किया इनकी प्रेजेंट वैल्यू, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 40,000 से कम थी। जब हम इसको प्लस करते हैं इन पांचों को, 8850 को, 9390 को, 10,395 को, 6130 को और 3801 को, जब इनको प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू 40,000 जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे $1,428 कम है। यानी जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें जो रिसीव हो रहा है वो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से $1,428 कम रिसीव हो रहा है इस प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच के बताएं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं और उससे हमें रिसीव कम हो रहा है, तो क्या हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो कॉमन सेंस आपकी ये बताती है कि ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट की में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और उससे रिटर्न कम मिल रहा हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इस प्रोजेक्ट के लिए ये होगा, the management of basket wonders had determined that the required rate of return is 13% for this project of this type. Should this project be accepted? No, the answer is no. क्योंकि net present value negative है, because the net present value is negative, this means that the project is reducing the shareholders wealth. इसका ये मतलब है कि ये जो project है वो shareholders की wealth को reduce कर रहा है, क्योंकि हम जितनी investment कर रहे हैं हमें return उससे ज्यादा नहीं आ रहा। तो एक की पॉइंट याद रखिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम वो देखते हैं कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज कि आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी में क्या था कि आपने 42,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप रिकॉल कर सकें, और आपकी जो नेक्स्ट ईयर की कैश इनफ्लोज हैं वो 14,000 पर ईयर है, ठीक है। अब चूंकि वो इवन कैश फ्लोज हैं, एक जैसी कैश फ्लोज हैं, दैट मेक्स इट एन एन्युटी। ये एक एन्युटी बनती है। जब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो आप एन्युटी के लिए आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो है CF मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस RD। अब यहाँ पे मैंने RD लिख दिया हुआ है क्योंकि आई एम यूज टू के मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को RD से लिखता हूँ, ठीक है। तो आपकी बुक में K से भी यूज हुआ है, RD से भी यूज हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि RD अब क्यों यहाँ पे आ गए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैन बी यूज फॉर एज RD एंड K, ठीक है। सो प्लस 1 प्लस RD रेज़ टू पावर -1 ओवर माइनस n ओवर RD माइनस इनिशियल कैश इनफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट याद रखिएगा कि जिसकी इवन कैश फ्लोज हैं उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, उसके लिए आपको अलग अलग से कैश जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। सो पुटिंग द वैल्यूज, कैश फ्लोज हैं 14,000, इवन कैश फ्लोज हैं 1 माइनस 1 प्लस 0.13 रेज़ टू द पावर 5 ओवर 0.13 माइनस 42,000। इसको सॉल्व किया तो प्रेजेंट वैल्यूज की जो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है उसका आंसर हमारे पास आया 53,071 माइनस 42,000। अब इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 11,071। अब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं
42,000 और हमें जो मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है वो 53,071 की फॉर्म में मिल रहा है, यानी हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से $11,071 ज्यादा है। सो लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। Yes, this NPV is positive. This means that the project is increasing the shareholders' wealth. तो यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है accept the project as net present value is greater than zero. जब net present value आपकी जीरो से ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी, उन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो रूल ऑफ द थंब इज दैट the project with a high net present value are accepted. In this case we have to choose between project A, उसका जो project A की net present value -1428 है और project B की net present value 11,071 है। Therefore यहाँ पे बिल्कुल सामने क्लियर है कि आपकी जो प्रोजेक्ट बी है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी जो प्रोजेक्ट ए है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो वैसे ही रिजेक्ट होगा, ठीक है। सो इफ टू प्रोजेक्ट्स आर गिवन, द वन विद द ग्रेटर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज एक्सेप्टेड। Now the next is the profitability index. Profitability index कैलकुलेट करना इजी है अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू की समझ आ गई है। प्रोजेक्ट ए का हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी कि आपकी जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट की है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आप डिवाइड कर दें इनिशियल कैश इनफ्लो से। वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या था कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस कर दें। अब माइनस नहीं करना, आपने इसको डिवाइड कर देना है। पहला मेथड ये है, आई विल प्रेफर मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल कैश इनफ्लो। तो आप मेथड 1 याद रखें क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस में आपको काफी हेल्पफुल होगा। आपने पहले कैलकुलेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट आपने पहले करेंगे तो पुट करेंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि आप इनकी जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको उसकी इनिशियल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दें। तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, वो थी 38,572। उसको कैश इनफ्लो यानी प्रोजेक्ट ए की जो कैश इनफ्लो है वो है 40,000, उससे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.9643 मेथड 1 से। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ए है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपकी दी हुई है 0.9643। क्या हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें? सो द रूल ऑफ थंब इज दैट कि हर वो प्रोजेक्ट जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 या 1 से ज्यादा हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर 1 से कम हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। No, the profitability index for the project A is less than 1. This means that the project is not profitable. तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट बी की तरफ आए तो प्रोजेक्ट बी का जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो हमने पहले मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशंस में खुद नहीं जा रहा क्योंकि कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी लास्ट स्लाइड्स में, दैट वाज 53,071। उसको हम उसकी इनिशियल कैश आउटफ्लो 42,000 से डिवाइड करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा इसका 1.26। अब इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है, तो लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में अगर पॉजिटिव है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दो प्रोजेक्ट अगर आपको गिवन हो और उसमें से एक प्रोजेक्ट को चूज करना हो तो उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरफ आए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर 1 से कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपके पास दो आपके पास प्रोजेक्ट दिए हों तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दूसरे से ज्यादा होगा। So if A and B are mutually exclusive projects, then the project with a high profitability index are accepted. In this case, we have to choose between two project A and the project B. Then project B will be accepted. इस केस में क्योंकि एक तो 1 से ज्यादा है और दूसरा project A की profitability index से इसका profitability index ज्यादा है, तो हम इसको accept करेंगे। इसकी summary देखें जो हमने पीछे वर्किंग की थी, यानी लेक्चर नंबर 9 एंड 10 दोनों को मिला के मैं कह रहा हूँ। प्रोजेक्ट ए हमने कैलकुलेट किया था, प्रोजेक्ट ए की जो पेबैक पीरियड था वो 3.3 इयर्स था।
जबकि हमने इसका जो बेंचमार्क रखा था वो था 3.5। हमने कहा था कि पे बैक पीरियड अगर 3.5 से कम है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए अगर हम सिर्फ पे बैक पीरियड के ऊपर फैसला करें, सिर्फ पे बैक पीरियड के ऊपर, तो प्रोजेक्ट ए को हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसका जो पे बैक पीरियड है वो 3.3 इयर्स है। लेकिन जब बाकी हम देखें तो इसका IRR 11.47% था, जबकि हमारा जो बेंचमार्क था वो 13% है। तो इस बेस के ऊपर हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 1424, और इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.96 है, जबकि बेंचमार्क इसका 1 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसको हम इसकी बेस पे रिजेक्ट करते हैं। तो 4 मेथड्स हैं प्रोजेक्ट ए को एवेलुएट करने के। एक मेथड ये कहता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर ले, दूसरा मेथड ये कहता है, आप 3 मेथड ये कहते हैं आप इसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बी की हम समरी देखें तो प्रोजेक्ट बी का जो पे बैक पीरियड था वो था 3, इसका IRR था 19% और इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 11071, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसकी है 11.26। अब इसके चारों क्राइटेरियाज ऐसे हैं कि जिसकी बेस पे हम चारों क्राइटेरिया की बेस पे हम इसको प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, पे बैक पीरियड की बेस पे देखें तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड कम है, प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड ज्यादा है। तो मैंने कहा था कि वो प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड कम होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पे बैक पीरियड की अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना और हमसे कहा जाए कि आपके पास पे बैक पीरियड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करें। IRR जो है वो 19% है प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का 11.60% है। तो अगर हमने IRR की बेस पे फैसला करना है तो उस सूरत में भी हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इससे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट बी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आप देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए की पॉजिटिव है, और इस वजह से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे भी ये डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स B1 से ज्यादा है और प्रोजेक्ट बी से ज्यादा है, तो हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस के ऊपर। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जेक्टिव समरी फॉर द कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट बी, ए एंड बी। यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। एंड नाउ इफ एनीवन हैज any question, he and she may ask me regarding today's lecture only.